Hello everyone, it's me Kiran Bhusal. I am basically from Nepal and currently residing in Lakshminagar, Lalita Park, New Delhi. And Lakshminagar, the name sounds and suggests CA student, and yes, I am a CA student. And in CA profession and while studying CA, two things really matters. First is your guts to join CA, and second thing is the teachers from which you are taking classes. And there is a myth like Cost FM is really a tough subject, but I didn't found it tough subject. In Cost FM, hard work doesn't matter much, smart work matters a lot. And I learned this from CA Namit Arora. He is a genuine personality in field of Cost FM. His way of teaching, practical approach, his friendliness with the students, his open-mindedness, his way of making students comfortable towards him really matters. And it really mattered in my case. Due to his approach of teaching, I got 91 marks in Cost FM and I got 40th rank all over India. And it worked in case of mine, and I hope it will work in case of yours as well. So I suggest you to take classes from CA Namit Arora of Cost FM, because it will not only make Cost FM easier for you, it will make IPCC easier for you. So and at last I would like to suggest you that in CA, smart work always counts much more than the hard work. So do hard work in a smart way. Thank you. Hi everyone, this is Kishore here. I am pursuing my CA from Delhi, and I have secured All India 10th rank in CPT. And I chose Namit sir for my coaching of Cost FM, because right away after the CPT exam, when I consulted with my seniors, they told me that you would not get so much of time to study yourself and get in the matter, and so I thought that would be not a good choice. So I searched for a teacher who can teach properly and make you understand right in the class, and that is what you need in a CA, in a rushing and running way. And when I chose Namit sir and started my classes, I felt very easy and comfortable with him, because he is very friendly nature. And what I get out of from him is he not only teaches Cost FM but also guides you along the path of CA, what you have to do right in this phase and what you will do after your exam, or how you prepare for the exam. And the most strong thing is he is very friendly, and it doesn't make you feel that you are a student or something. That he makes you feel that you are here to learn, and he really helps. And what I suggest now is just think about it and consider Namit sir, because if you want your IPCC effective and qualitative and make you want to study in a healthy way, then better choose Namit sir. And so believe me, you would not regret your decision, and the best out of you will come. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी नमित अरोरा। दोस्तों, एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवरहेड। उसके लिए एक फास्ट ट्रैक क्लास डिज़ाइन की हमने। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स करे हैं। बहुत छोटी सी क्लास है। कोशिश की गई है कि पूरा चैप्टर हम इसके अंदर कवर कर पाएँ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आराम से देखिएगा। इस चैप्टर में जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए चैप्टर मैंने उठाया है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट पहले मेरे साथ आराम से चलना होगा। मैं कुछ बेस तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, उस बेस को समझना होगा। उसके बाद में हम ओवरहेड को समझ पाएंगे। करीब अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट आपको देने होंगे। सिंसियरली दीजिएगा। ये 10-15 मिनट आपने आराम से दे दिए तो आगे वाला ईजी वे में आपका हो जाएगा। देखिएगा, मेरे पास 3 स्क्रीन्स हैं। एक ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक स्क्रीन है मेरे पास इस तरीके से पेज है, इस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वो आपको दिखता रहेगा। तीसरी स्क्रीन है जिसमें आपको पेज भी दिख सकता है और मैं भी दिख सकता हूँ। मैं अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली, जैसे मेरे को लगेगा
मैं इसे स्क्रीन्स को बदलता रहूँगा, ठीक है। देखिएगा, हमारे पास चैप्टर है ओवरहेड। सबसे पहले ओवरहेड का मतलब पता होना चाहिए, आखिर ये चीज़ क्या है, क्यों है, किस लिए है और किस तरह से हम इसे समझ के ट्रीट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें वन बाय वन देखनी है। देखिए, हमारे पास कॉस्टिंग के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जो 3 एलिमेंट हैं वो एलिमेंट है मेरे पास मटेरियल्स। बेसिकली बोला जाता है मटेरियल, जबकि ये रॉ मटेरियल होता है। पहला एलिमेंट है मेरे पास रॉ मटेरियल या मटेरियल। दूसरा एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम लेबर के नाम से जानते हैं। तो पहले आप कुछ मटेरियल लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ लेबर उस पर काम करेगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर क्या होगा, इस फ़ोन के अंदर कुछ मटेरियल, यानी जैसे इसकी स्क्रीन है और इसके बटन्स वगैरह हैं साइड्स में, ये सब चीज़ें हैं, ये मेरे पास मटेरियल हो गया। इसको मशीनों के ऊपर बनाया गया होगा, तो मशीनों के ऊपर कुछ वर्कर्स ने काम करा होगा, उन्हें लेबर बोलते हैं। तो एक हुआ मटेरियल, दूसरा हुआ लेबर, तीसरा है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस है उस फैक्ट्री के अंदर के खर्चे जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये 3 एलिमेंट मेरे पास रहेंगे, मटेरियल, लेबर और तीसरा है अदर एक्सपेंसेज, ठीक है। इनको आपके स्टडी मटेरियल ने फर्दर क्लासिफाई किया है। उन्होंने कहा कि जैसे मटेरियल है, ये मटेरियल आपका खर्चा है, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक डायरेक्ट मटेरियल्स, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ओके, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है अभी थोड़ी देर में आएगा समझ में। इसके बाद में ऐसी जो वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। ओके, और अदर एक्सपेंस, इसे भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। मतलब तीनों खर्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट में बांटा जा सकता है। ओके, बांटने से फ़ायदा क्या होगा, ये बोले हमारी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है जो आपको नज़र आ रही है, हमारी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, इस सारी डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये तीनों आ जाएंगे। डायरेक्ट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं निकालने, इनको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, एकदम पता चल जाते हैं। और ये हमारा चैप्टर भी नहीं है, हमारा चैप्टर है इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड वो खर्चा है जो कन्वीनियंटली नहीं निकाला जा सकता। आखिर ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ आखिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल क्या रहा है। पहले आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड क्या है। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ किताबें विताबें होती होंगी, जैसे यहाँ पर ये रखी है, इनकम टैक्स की बुक रखी है। अगर मान लो मैं इनकम टैक्स की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मटेरियल है, ठीक है। और मेरे पास असल में कोई बुक वगैरह नहीं है, तो उसी को दिखा दी मैंने। लेबर, लेबर में हूँ और लेबर बाहर भी है हमारे पास। जैसे कि अभी मैं बेल बजा देता हूँ, हाँ जी। अब क्लास कौन ले रहा है, क्लास में ले रहा हूँ, है ना, हाँ जी, मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। हमारे पास इमरान है, आ जा, अरे इधर आ, हाँ जी, हाँ भाई ये इमरान है, कैमरे में देखो, हाँ जी। इमरान तुम्हारा क्या काम रहता है? सर मेरा आईटी डिपार्टमेंट में है। ये आईटी डिपार्टमेंट में है,
ये आप लोगों को बाहर से देखते रहते हैं क्लास ठीक से चल रही है या नहीं। फैजल तू भी आ जा, आ जा, आ जा, अरे जल्दी आ। हाँ ठीक है, आ जाओ भाई। ये हमारे पास फैजल जी हैं। फैजल जी आप क्या क्या काम करते हैं बच्चे बताइए। मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ हाँ जी और क्लास प्ले वगैरह करवाता हूँ। ठीक है, ये एडिटिंग करते हैं और क्लास प्ले करवाते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, नहीं भी करवाते तो छोड़ दे इनको। हाँ, अब हमारे पास ये जूम वगैरह भी ये लोग बाहर से करते रहते हैं, स्क्रीन वगैरह भी कई बार ये बदलते रहते हैं, कई बार मैं बदलता रहता हूँ। तो एक आपके पास मटेरियल हुआ क्लास के लिए, क्लास के लिए एक मटेरियल हुआ जिस चीज़ से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके पास बुक रहेगी। एक हुई लेबर, लेबर यानी जो पढ़ा रहा है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं डायरेक्ट लेबर हूँ, आपके डायरेक्ट रिलेशन में हूँ। और जैसे इमरान आया अभी, फैजल आया अभी, ये लोग इनडायरेक्ट लेबर हैं क्योंकि ये आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहे, लेकिन क्या ये आपको पढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं? यस, ये आपको पढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। किसका सपोर्ट? मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कैमरा देख रहा है, कोई आईटी डिपार्टमेंट को देख रहा है, कोई प्ले देख रहा है, कोई ये देख रहा है क्लास ख़राब ना हो, कोई माइक वगैरह देख रहा है, तो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं जिससे आपकी क्लासेज चल पाएँ। तो इनडायरेक्ट लेबर यानी जो डायरेक्टली कस्टमर के लिए सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बनाती। हम दो ही काम करते हैं, या तो प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए मुझे फ़ोन बनाना है, तो ये मेरा हो गया प्रोडक्शन। हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करना। तो सर्विस प्रोवाइड करने में या प्रोडक्ट बनाने में जो ह्यूमन बीइंग, बहुत आराम से सुनिएगा, सर्विस प्रोवाइड करने में या प्रोडक्ट बनाने में जो ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करने में, उसे डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और जो लेबर इनडायरेक्टली काम कर रही है, यानी काम तो कर रही है लेकिन डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, वो इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल के अंदर है, मटेरियल सर्विस प्रोवाइडिंग में नहीं होता जनरली, मटेरियल होता है प्रोडक्शन में। जो मटेरियल प्रोडक्ट में, जो मटेरियल प्रोडक्ट में लगा हुआ होगा वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। जैसे मैं इसका कवर उतार देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक मोबाइल है, ओके। इस मोबाइल में एक स्क्रीन है, ठीक है, कुछ बटन्स लगे हुए हैं, और ये आउटर इसका शायद एल्युमिनियम वगैरह सा बना हुआ है, ये सब बना हुआ है, ये इसका बैक वगैरह सब कुछ है, ये पूरा का पूरा मोबाइल तैयार है। इस मोबाइल के अंदर ये स्क्रीन, अंदर बैटरी होती है, इसके अंदर ये बटन्स लगे हुए हैं, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि प्रोडक्ट में मौजूद है। क्या प्रोडक्ट में स्क्रीन आकर डायरेक्ट लग गई होगी? यस। क्या इसके आउटर्स, इसकी साइड डायरेक्ट आके लग गई होंगी? यस। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल सीधे प्रोडक्ट में लग जाए वो डायरेक्ट मटेरियल, जो लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो वो डायरेक्ट लेबर, और जो खर्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व हों वो डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट चीज़ें वो हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लाइक फैजल और इमरान डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्ट लेबर हैं। इस मोबाइल को बनाने में एक जनरेटर यूज हुआ, जब फैक्ट्री में इस मोबाइल को बनाने में एक जनरेटर यूज हुआ, उस जनरेटर के अंदर डीजल डाला गया, वो डीजल भी तो मेरा खर्चा है। डीजल बेसिकली मटेरियल है, डीजल पेट्रोल ये सब चीज़ें मटेरियल हैं। डीजल डाला गया जनरेटर के अंदर, जनरेटर चालू किया गया, उस जनरेटर से लाइट बनी, लाइट से मशीनें चली, मशीनों के ऊपर मोबाइल बना। आराम से सुनिएगा, जनरेटर के अंदर डीजल डाला, डीजल मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया, मेरा खर्चा हो गया। बताइए डीजल मैंने किस लिए ख़रीदा? मैंने डीजल इसलिए ख़रीदा जिससे मोबाइल बन पाए, लेकिन वो डीजल डला जनरेटर के अंदर, जनरेटर ने लाइट बनाई, लाइट से मशीन चली, मशीन ने मोबाइल बनाया। क्या डीजल डायरेक्टली मोबाइल से रिलेटेड है? नहीं। मटेरियल का खर्चा डीजल है लेकिन वो डायरेक्टली मोबाइल के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। क्या मोबाइल की स्क्रीन रिलेटेड है? यस, मोबाइल की स्क्रीन बनी और डायरेक्ट मोबाइल में लग गई, मोबाइल की बैटरी बनी डायरेक्ट मोबाइल में लग गई। ये एल्युमिनियम जो आपको दिख रहा है बाहर, या जो भी हो, ये एल्युमिनियम डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि वो फिनिश्ड गुड्स में, प्रोडक्ट में जो आउटपुट बनकर आया उसमें नज़र आ रहा है, पर डीजल तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। कुछ ल्यूब्रिकेंट ऑयल डले होंगे, कुछ ल्यूब्रिकेंट ऑयल डले होंगे किस चीज़ के अंदर? मशीनों के अंदर। जिन मशीन्स पर ये मोबाइल बनाए, ये मोबाइल जिन मशीन पर बनाए जिससे वो मशीन्स स्मूथली काम कर सकें, उनमें ल्यूब्रिकेंट ऑयल, मोबिल ऑयल वगैरह डले होंगे। क्या वो मोबिल ऑयल वगैरह आपको मोबाइल में नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे। इसका मतलब वो खर्चा इनडायरेक्ट है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे की थोड़ी सी वो दिखाता हूँ। हम लोग एक कार बनाते हैं, ये कार है आपकी लंबोर्गिनी है,
लंबोर्गिनी कार हम लोगों को बनानी है। ज़रा देखिए, लंबोर्गिनी के अंदर ये ग्लास नज़र आ रहे हैं, ये दरवाजे नज़र आ रहे हैं। दरवाजे इसके कार्बन फाइबर के होते हैं। कार्बन फाइबर एक मटेरियल होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स में आता है एक। इसके ऊपर पेंट हो रखा है, पेंट नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये टायर्स बने हुए हैं, टायर नज़र आ रहे होंगे आपको। ये हेडलाइट्स के ग्लास, विंड स्क्रीन, ये जो भी मटेरियल इसके अंदर नज़र आ रहा है वो सारा का सारा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है। और इसे पहचानना बहुत सिंपल होता है, इसे पहचानना बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में जनरेटर के अंदर डीजल डाला जाए। इसी गाड़ी को बनाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया गया है। इसी गाड़ी को बनाने के लिए मशीन्स के अंदर ल्यूब्रिकेंट ऑयल डाले गए हैं। बताइए, ये ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल क्या कार के बनने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट मटेरियल हैं। ये डीजल जो डाला गया है इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि कार के अंदर तो मौजूद ही नहीं है। और कार है मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट, कार मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इसी को बनाने के लिए मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ। कार बनाने में दरवाजे, शीशों में लगा हुआ ग्लास, दरवाजों में किया गया पेंट, गाड़ी में लगे गए टायर, हेडलाइट का शीशा, बल्ब, सब कुछ डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि कार से डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन जो डीजल डाला गया होगा जनरेटर में वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट। जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल हैं वो इनडायरेक्ट, क्योंकि कार में नज़र नहीं आ रहे, ओके। कुछ लेबर होती है, कुछ वर्कर हैं जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर मशीनों पर काम कर रहे हैं। फैक्ट्री है ये आपकी, इस फैक्ट्री के अंदर मशीनों के ऊपर काम कर रहे हैं ये वर्कर क्या प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? सोच के बताइए। यस, ये वर्कर डायरेक्ट वर्कर हैं, ये वर्कर डायरेक्ट लेबर है, ओके। ये वर्कर टायर लगा रहा है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व है? यस, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अपने हाथों से मशीनों के ऊपर काम कर रहा है। जो वर्कर अपने हाथों से मशीनों के ऊपर काम करे वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसी के हाथों से तो काम हो रहा है। लेकिन कुछ वर्कर ऐसे नहीं होते, कुछ वर्कर अलग होते हैं। कुछ वर्कर मशीनों के ऊपर काम नहीं करते, वो ऑफिस में बैठकर मैनेजमेंट देखते हैं। बताइए, ऑफिस में बैठने वाले लोग, मैनेजमेंट देखने वाले लोग, सुपरवाइजर, मान लीजिए सुपरवाइजर है या फैक्ट्री का मैनेजर है, ये फैक्ट्री का मैनेजर, सुपरवाइजर क्या अपने हाथों से काम करता है या नहीं? ना, ये अपने हाथों से काम नहीं करता, लेकिन इंस्ट्रक्शंस देता है। ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है, ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है। क्या फैक्ट्री का मैनेजर प्रोडक्शन का पार्ट है? यस, फैक्ट्री का मैनेजर सब कुछ मैनेज करता है। क्या सुपरवाइजर फैक्ट्री के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? यस, इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। सुपरवाइजर खुद काम नहीं करता, वो काम करवाता है। वो मशीनों के ऊपर अपना हाथ नहीं लगाता, वो मशीनों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करता है, उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो खुद अपने हाथों से काम नहीं करते। सुपरवाइजर, फैक्ट्री का मैनेजर, गेट कीपर, गेट पर खड़ा है, क्या ये डायरेक्ट लेबर है? नहीं, ये इनडायरेक्ट लेबर है। क्या ये मैनेजर? ये सब इनडायरेक्ट लेबर हैं, ओके। तो कुछ खर्चे होते हैं डायरेक्ट, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, और कुछ इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। खर्चा सारा है, सारी चीज़ें ही हमारा खर्चा है। जो भी फैक्ट्री के अंदर चल रहा है वो सब मेरा खर्चा है। प्रोडक्शन अपने हाथों से हो रहा है, डायरेक्ट लेबर। अपने हाथों से लेबर काम नहीं कर रही, मैनेज कर रही है, ये काम करो, वो काम करो, इनडायरेक्ट लेबर। मटेरियल फिनिश गुड्स में लग गया, दरवाजों में लग गया, शीशे लग गए, हेडलाइट लग गई, डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल डीजल है, आपने डाल दिया जनरेटर के अंदर, मोबिल ऑयल है, मशीनों के अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल। खर्चे सारे हैं, सारी चीज़ें खर्च हो रही हैं। फैक्ट्री का रेंट जाएगा, फैक्ट्री का डेप्रीशिएशन जाएगा, ये भी खर्चे हैं। फैक्ट्री की बिल्डिंग होगी, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर, ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है,
इसका डेप्रीशिएशन, अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग आपकी है तो, नहीं है तो रेंट। ओके, ये आपका ऑफिस है, इसका रेंट, इसका डेप्रीशिएशन। ओके, या तो रेंट होगा या तो डेप्रीशिएशन। आपकी अपनी है तो डेप्रीशिएशन लगेगा, आपकी अपनी नहीं है तो रेंट जाएगा। अपनी है तो इंश्योरेंस करवाओगे फैक्ट्री का, सफाई धुलाई करोगे, सारी चीज़ें खर्चे हैं। फैक्ट्री के अंदर मशीन्स काम कर रही हैं, इन मशीन्स का डेप्रीशिएशन, इन मशीन्स का इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें खर्चे हैं जो कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ इनडायरेक्ट। ओके, अगर प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो डायरेक्ट खर्चा, और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो इनडायरेक्ट खर्चा। अब जैसे ये मशीनें सीधे आपकी कार के ऊपर काम कर रही है, ये वाली मशीन कार के ऊपर काम कर रही है, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसे ले सकते हो। और ये बिल्डिंग या और कोई खर्चा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, उसे आप इनडायरेक्ट में कंसीडर कर सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट धीरे धीरे आपको करने आना सीख जाएंगे। खैर, हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, एक्सपेंस हो सकते हैं। अगर प्रोडक्शन में सीधे मटेरियल लगा और प्रोडक्ट में चला गया, मटेरियल लगा और प्रोडक्ट में पहुंच गया, डायरेक्ट मटेरियल। लेबर ने इस मोबाइल के ऊपर अपने हाथों से काम कराए, डायरेक्ट लेबर। मशीनों ने इस मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट काम कराए, डायरेक्ट एक्सपेंस। मशीनों ने इसके ऊपर काम नहीं करा, एक हो सकता है वाइपर मार रहा है कोई, वाइपर भी मशीन है, या एक वो होता है जो धूल मिट्टी को उठा लेता है, क्या कहते हैं उसे, जो भी बोलते हैं आप समझ गए होंगे, वो हवा उसके अंदर आ जाती है, मेरे मुंह से नाम निकल रहा है उसका। तो अगर कोई इस तरीके की मशीन है जो प्रोडक्शन में काम नहीं आ रही लेकिन सफाई धुलाई के काम आ रही है और आपकी किसी और चीज़ में काम आ रही है, फैक्ट्री के अंदर ही हेल्प कर रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर वो आ जाएगा। ऐसे ही वो लेबर जो इसके ऊपर अपने आप काम नहीं कर रहे, सुपरवाइजर है, गेट कीपर है, फैक्ट्री का मैनेजर है, ये सब इनडायरेक्ट लेबर। और ऐसा मटेरियल जो इस प्रोडक्ट में नहीं लगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट में सारे खर्चे बांटे गए हैं। डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट कहलाएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड कहलाएंगे। हमें मतलब है सिर्फ ओवरहेड से और इनडायरेक्ट कॉस्ट से। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, cost which can be conveniently traced to or identified with the यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जनरली यूनिट्स बनाने की बात होगी, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस प्रोवाइडेड। ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने अभी करा है उसी में ले लेते हैं। कार्बन फाइबर, पेंट, इन कार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ मैं, हेडलाइट, विंड स्क्रीन, ग्लास। ठीक है, वर्कर्स, वर्किंग ऑन मशीन्स इन फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार। यहां पर हमने कार ली है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो जाएंगी, एटसेट्रा। ठीक है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो जो कन्वीनियंटली लिंक ना की जा सके या ट्रेस ना की जा सके इजीली। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, या ओवरहेड, इन्हीं की बात चल रही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड बहुत सिंपल,
cost which cannot be conveniently traced to or identified. Which cannot be conveniently traced to or identified. With the units produced. Or service provided. Example: lubricant oils, diesel for generator, salaries of watchman, supervisor, और आप ले सकते हो फैक्ट्री की हीटिंग लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट। अब फैक्ट्री के रेंट को डायरेक्टली कार से लिंक थोड़ी कर सकते हो, उसमें तो बहुत सारी कारें बनेंगी एटसेट्रा। धीरे धीरे आ जाएगा, आपको धीरे धीरे चीज़ आ जाएंगी, देखते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात चल रही है। हम लोगों को ओवरहेड चैप्टर सीखना है, तो ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट खर्चे। ठीक है, ये हमने छोटी सी बात अभी सीखी है, धीरे धीरे सीखेंगे। प्राइम कॉस्ट से या डायरेक्ट कॉस्ट से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मुझे आपको कुछ चीज़ें सिखानी है जिससे हम इस चीज़ में आगे बढ़ पाएँ। ओवरहेड का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा या कैसे कैलकुलेट होगा या आईपीसीसी में उसके क्वेश्चन कैसे होंगे, उसके लिए पहले हमें कुछ चीज़ों को और जानना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, बेसिकली फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री जिसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कार बनानी है तो कार जिस फैक्ट्री के अंदर बन रही है वो फैक्ट्री मेन डिपार्टमेंट है। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं मेन, हो सकता है कि दो फैक्ट्रियाँ हों, एक जगह पे कुछ पार्ट बनते हों, जैसे एक जगह पे इंजन बने आपका, दूसरी जगह पे असेंबली होती हो। तो इंजन जहाँ पर बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ असेंबली हो रही है वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो जहाँ असेंबली हो रही है, इंजन बन रहा है, ये सब मेन डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं इनके जस्ट पीछे, जैसे ये आपके पास मेन डिपार्टमेंट हैं दो, तो इन्हीं के पीछे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो खुद प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन हेल्प करते हैं। जैसे मैं हूँ डिपार्टमेंट 1, मैं मेन डिपार्टमेंट हूँ और मैं कार को खुद बनाता हूँ। अब जैसे मैं कार को बना रहा हूँ, अब कार के लिए मैंने मशीन लेकर आया, मैं घूँ, मैं बोला कार को बनाता हूँ। कार मैंने बनानी स्टार्ट करी, तभी मेरी मशीन में कोई दिक्कत आ गई। अब मेरी मशीन को ठीक करने के लिए मैं एक डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा जो इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट होगा, वर्कशॉप, जो मेरी मशीन ठीक करेंगे। तो मैं कहूँगा वर्कशॉप आओ, तो वर्कशॉप मेरे पीछे है, वो यहाँ कहीं पर खड़ा हुआ है, वो वर्कशॉप मेरे पीछे, वो आएगा कि हाँ जी बताइए क्या करना है। तो मैं कहूँगा आओ मेरी मशीन को ठीक करो। मैं आऊँगा वर्कशॉप से, मैं मशीन ठीक करूँगा और मैं वापस चला जाऊँगा। ठीक है, क्या वर्कशॉप डिपार्टमेंट खुद कार को बनाता है? नहीं, वर्कशॉप डिपार्टमेंट कार को नहीं बना रहा, लेकिन कार बनाने में हेल्प कर रहा है मेन डिपार्टमेंट की। ऐसे ही मैं फैक्ट्री हूँ, मेन डिपार्टमेंट हूँ, मुझे मटेरियल चाहिए। मैं बोला मेरे को 4 टायर की ज़रूरत है, गाड़ी में लगाने हैं टायर, 4 टायर्स की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा टायर्स लाओ, तभी एक पीछे डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है हेल्प करने के लिए, स्टोर को मैं फ़ोन करूँगा टायर भेजो, तो तुरंत टायर भेजे जाएंगे। तो टायर लेकर स्टोर आएगा, स्टोर आकर टायर देगा और वो वापस चला जाएगा। क्या स्टोर खुद प्रोडक्शन करता है? नहीं, स्टोर खुद प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, मेन डिपार्टमेंट की हेल्प करता है जिससे वो स्मूथली अपने प्रोडक्शन को कर सकें। तो हर जगह पर दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, एक
जो मेन डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा, दूसरे वो डिपार्टमेंट जो खुद प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ है। इसके बाद एक छोटी सी और चीज़ है, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट्स। एक है मेरे पास मेन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जनरली प्रोडक्शन की बातें करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं सपोर्ट और सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, दो तरीके के डिपार्टमेंट हैं, मेन और सपोर्टिंग। ठीक है, नेचर, the departments are directly involved in production. ठीक है, ये डिपार्टमेंट खुद ही प्रोडक्शन करते हैं। All products are produced in these department। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे एक जगह पे इंजन बन रहा है, दूसरी जगह पे उसे असेंबल किया जा रहा है, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। For such production, the departments take help या support, help और support from service department या support department। service, support, secondary, helping, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप जो आपको ठीक लगे, हेल्पिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके। अब आते हैं सपोर्ट डिपार्टमेंट पर। इनकी नेचर क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट्स या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स, कुछ भी नाम ले सकते हैं, सपोर्ट, हेल्पिंग, असिस्टिंग, सेकेंडरी डिपार्टमेंट, कुछ भी नाम ले सकते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स आर दो डिपार्टमेंट्स which do not directly take part in production process। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में खुद पार्ट नहीं लेते। ठीक है, such department provide ancillary services, ancillary यानी helping, which make possible the carrying out प्रोडक्शन। वैसे शॉर्ट में बात की जाए तो एक डिपार्टमेंट जहाँ पर सामान बनेगा और दूसरा डिपार्टमेंट जो हेल्प करेगा सामान बनाने में। ठीक है, इन डिपार्टमेंट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्टोर्स मटेरियल को रखने के काम में आएंगे, वर्कशॉप आपकी मशीनों को ठीक करेगी या इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं इसे, कैंटीन आपके एम्प्लॉयज के जब भूख लगेगी उसके खाने पीने के काम में आएगी। इस तरीके से हमारा कार्यक्रम चलता है। ओके, ठीक है, तो एक है मेन डिपार्टमेंट और एक है सपोर्ट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट्स मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आते हैं शीट पर क्यों लिखवाए हैं।
इन डिपार्टमेंट्स को लिखवाने का रीजन देखेगा, हमारे पास मैं ये मान लेता हूँ 3 पीछे डिपार्टमेंट खड़े हैं, S1, S2, S3, ये पीछे खड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, हेल्पिंग डिपार्टमेंट है। S यानी सपोर्ट, ओके। और आगे खड़े हैं 2 डिपार्टमेंट P1 और P2, ये है मेन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो 2 डिपार्टमेंट, एक में इंजन बन रहा है, एक में असेंबली हो रही है, ये 2 डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, ठीक है। इन दोनों डिपार्टमेंट से मिलकर तैयार होती है मेरे पास एक कार, वो कार है मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या किया गया होगा। सपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने कुछ खर्चे किए होंगे, उन खर्चों में सपोर्ट डिपार्टमेंट 1, सपोर्ट डिपार्टमेंट 2, सपोर्ट डिपार्टमेंट 3, इन तीनों ने कुछ खर्चे किए हैं। टोटल कॉस्ट यानी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ओके। ये 3 डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने अपने कुछ खर्चे किए। मुझे बताइए ये तीनों डिपार्टमेंट अपने बिल किसके सर पर फाड़ देंगे। मैं आप लोग को बता दूं, ये तीनों डिपार्टमेंट अपने बिल बनाएंगे और वो बिल इन दोनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर चार्ज कर देंगे। सोच के देखिए, पीछे वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ पर था वर्कशॉप, मैं दिख भी नहीं रहा इसमें इतनी पीछे आके, ये वर्कशॉप था, ये क्या कहेगा मेरा खर्चा इतना हुआ। पीछे एक स्टोर, मेरा खर्चा इतना हुआ। एक डिपार्टमेंट और कैंटीन, मेरा खर्चा इतना हुआ। ये सारे खर्चे किसके ऊपर डाल देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो बार बार कहता है स्टोर सामान भेजो, इंजीनियर्स मेरी मशीनें ठीक करो, कैंटीन मेरे वर्कर्स को खाना खिलाओ। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो इन तीनों से डिमांड कर रहे थे कि ये करो वो करो, तो ये अपने सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डाल देंगे, ठीक है। सारे खर्चे आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मेन डिपार्टमेंट, वो क्या करेंगे, वो अपने कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, इनके भी कुछ खर्चे होंगे, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ठीक है। आराम से सोचकर जवाब दीजिए, इस कार के बनने में, इस फिनिश्ड गुड्स के बनने में क्या स्टोर डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं? नहीं। कैंटीन डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं? नहीं। इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट, रिपेयर मेंटेनेंस, तीनों में से कोई भी डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो कार के लिए S1, S2, S3 तीनों का खर्चा इनडायरेक्ट हुआ। सोच के देखिए, कार के लिए S1 के सारे खर्चे, सर्विस डिपार्टमेंट फर्स्ट, इसका सारा खर्चा 2, 3, तीनों डिपार्टमेंट के खर्चे कार के लिए तो इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि कार कौन बना रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखिए जरा, कार कहाँ बन रही है? कार बन रही है फैक्ट्री के अंदर, या तो P1 में या P2 में। कार ना तो बन रही है स्टोर में, ना बन रही है कैंटीन में, ना बन रही है वर्कशॉप यानी रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। कार बन रही है फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 में। फैक्ट्री 1 में कार का इंजन बन रहा है और फैक्ट्री 2 में कार की असेंबली हो रही है, ठीक है। तो कार के लिए जितने भी सपोर्ट डिपार्टमेंट हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 डायरेक्ट हैं। ये जो डायरेक्ट खर्चा है P1, ये जाएगा प्राइम कॉस्ट में, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। ये वाला डायरेक्ट खर्चा जाएगा प्राइम कॉस्ट में। ये इनडायरेक्ट खर्चे जाएंगे ओवरहेड में, ये इनडायरेक्ट खर्चे दोनों के जाएंगे ओवरहेड में। और सपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, फिनिश्ड गुड्स के लिए वो सारा का सारा इनडायरेक्ट है। ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट खर्चे, ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट खर्चे। आराम से सुनिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के जितने डायरेक्ट खर्चे हैं वो प्राइम कॉस्ट में, जो इनडायरेक्ट हैं वो ओवरहेड में।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, डायरेक्ट खर्चा प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट खर्चा ओवरहेड, ठीक है। सपोर्ट डिपार्टमेंट स्टोर, स्टोर का तो कार से कोई लेना देना ही नहीं, स्टोर तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही कार के लिए इनडायरेक्ट है। तो स्टोर कह रहे हैं मेरे ऐसे स्टोर अपने खर्चे बताएगा, ये मेरा डायरेक्ट खर्चा, ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा। कार कहेगी तेरे सारे खर्चे मेरे लिए इनडायरेक्ट। वर्कशॉप कहेगी मेरे खर्चा डायरेक्ट, मेरे खर्चा इनडायरेक्ट। कार कहेगी तू मेरे लिए पूरा इनडायरेक्ट। फिर एक कैंटीन होगी, कैंटीन कहेगा ये मेरा डायरेक्ट खर्चा, ये इनडायरेक्ट खर्चा। कार कहेगी तू मेरे लिए पूरी की पूरी इनडायरेक्ट, मुझे तुम तीनों से कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो कार के लिए ये तीनों डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इनडायरेक्ट हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब ओवरहेड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 कार से रिलेटेड हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के डायरेक्ट खर्चे प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट ओवरहेड में, इसके भी इनडायरेक्ट ओवरहेड में। जिस्ट, जिस्ट हमारे पास ये है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेन डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये प्राइम कॉस्ट बनेगी। प्राइम कॉस्ट यानी मेजर कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स है कार, ठीक है। तो मेन डिपार्टमेंट की जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, indirect cost of production department and total cost, total cost में क्या क्या, direct plus indirect cost of support departments, ये दोनों ही ओवरहेड का पार्ट बनेंगे। अगर अब आपसे कोई इन फ्यूचर पूछता है कि ओवरहेड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट खर्चा ओवरहेड, और कोई सपोर्ट करने वाला डिपार्टमेंट है उसके सारे खर्चे ओवरहेड, क्योंकि हमें उससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अब जरा सुनिए आखिर चल क्या रहा है, धीरे धीरे समझिए। पहले यहां तक का आपको बताता हूं, यहां तक बल्कि आपको दिखा देता हूं पूरा। हमारे पास 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। उनके 2 हिस्से करे गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है जो आराम से पहचाना जा सकता है फिनिश गुड्स में, और इनडायरेक्ट वो है जो आराम से पहचाना नहीं जा सकता या डायरेक्टली उसके टच में नहीं है, ठीक है। 2 तरीके के डिपार्टमेंट, एक मेन जहां प्रोडक्शन होता है और एक सपोर्ट, वो प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड हैं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड हैं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे प्रोडक्ट के लिए प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा एक आपको आइडिया देता हूँ। अब मेरे से आके कोई कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आखिर ओवरहेड चैप्टर एस्टेब्लिश क्यों हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट सोचिए, क्या एस्टेब्लिश क्यों हुआ। कोई मुझसे आके कहता है कि मुझे लिम्बोर्गिनी कार चाहिए, आ जाते हैं जी, ये रही कार। कोई मुझसे आके कहता है मुझे लिम्बोर्गिनी कार चाहिए। अब कंपनी कहेगी ठीक है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए का। इसमें डायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में काम करेगी वो लगेगी, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए की। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री के अंदर होंगे वो मान लेते हैं 1 करोड़ के, 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हैं। मुझे बताइए क्या कार में लगने वाले टायर, विंड स्क्रीन और आपकी हेडलाइट, कार्बन फाइबर का खर्चा, क्या मैं कार में लगने वाले डायरेक्ट खर्चों को काउंट कर सकता हूँ? बड़े आराम से काउंट कर सकता हूँ जी। कार में टायर लगेंगे, कार्बन फाइबर लगेगा, हेडलाइट लगेगी, ये लगेगी। क्या मैं डायरेक्ट लेबर को काउंट कर सकता हूँ? बहुत आराम से। भाई इतने इंजीनियर लगेंगे, इतने घंटे काम होगा, कार बन जाएगी। क्या मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लगा सकता हूँ? बिल्कुल सिंपल, इस कार का जो इंजन का पेटेंट है उसके इतने पैसे जाने हैं, वो जाना है, ये सब डायरेक्ट खर्चे हैं, सीधे कार से रिलेटेड है। ओके, ये सारी चीज़ें तो हो गई डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट खर्चे सोचिए।
इस कार को बनाने के लिए कैंटीन थी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, और एक और डिपार्टमेंट को लेकर चल रहे हैं हम। इंजीनियरिंग को ले रहे हैं हम, कैंटीन को ले रहे हैं, स्टोर, एक स्टोर को ले रहे हैं। ठीक है, ये तीनों डिपार्टमेंट हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट के खर्चे कितने होंगे एक कार के लिए? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया भाई। एक ही कार को बनाने में 3 डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उन 3 डिपार्टमेंट का खर्चा कितना होगा इसका आइडिया में नहीं लगा सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 3 डिपार्टमेंट हेल्प कर रहे हैं। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ इनडायरेक्ट खर्चे हैं। सुपरवाइजर अपना हंटर घुमाता हुआ घूम रहा है, देखते हैं कौन काम कर रहा है कौन नहीं। सुपरवाइजर की सैलरी कितनी डालें इस कार के ऊपर, बड़ी मुश्किल है। और हमारा वॉचमैन खड़ा हुआ है बाहर, उसकी सैलरी का कितना हिस्सा एक कार पे डालें, बड़ा मुश्किल है। इन सबको ये बोले जो डायरेक्ट खर्चा है, मोटा मोटा खर्चा, वो तो तुम एकदम से बता रहे हो। तुमने एकदम से बता दिया कि इस कार में इतना मटेरियल लगा, तुमने एकदम से बता दिया कि इन इंजीनियर्स को कितने पैसे दिए जाएंगे, तुमने एकदम से बता दिया कि ये जो डायरेक्ट मशीन काम कर रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कितने रुपए होगी। लेकिन इन सारे एम्प्लॉयज का कितना खर्चा एक कार पर, इस वॉचमैन का कितना खर्चा एक कार पर, इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन, कितना खर्चा एक कार पर डाला जाए, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बोले इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश करते हैं कि डायरेक्ट खर्चों को जो आराम से इजीली जोड़े जा सकते हैं उन्हें अलग रखते हैं, और जो खर्चे आराम से किसी चीज़ से रिलेट नहीं किए जा सकते उन्हें अलग करते हैं। क्या इस मोबाइल की स्क्रीन को इजीली जोड़ सकता हूँ? यस। क्या इस एल्युमिनियम को इजीली जोड़ सकता हूँ? यस। क्या इसकी बैटरी वगैरह को इजीली जोड़ सकता हूँ? यस। क्या इस मोबाइल को जिस एम्प्लॉय ने बनाया है उसकी सैलरी को इसमें ऐड कर सकता हूँ? यस। लेकिन ये मोबाइल जिस फैक्ट्री में बना, ये मोबाइल बनाने के लिए जो मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा वो निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक मशीन पे तो हज़ारों मोबाइल बनते हैं, क्योंकि एक फैक्ट्री में तो हज़ारों मोबाइल बनते हैं। वॉचमैन, मैनेजर की सैलरी, ये सब एक मोबाइल पे कैसे डालूं, बड़ा मुश्किल है। तो जो आसान खर्चे हैं, जो कन्वीनियंटली ट्रेस किए जा सकते हैं, देखिएगा, जो कन्वीनियंटली ट्रेस किए जा सकते हैं उन्हें बोला गया डायरेक्ट कॉस्ट। बोले इसे साइड में रख दो, ये आसान चीज़ है, इसे तो हम निकाल लेंगे। बोले जो कन्वीनियंटली नहीं निकाले जा सकते वो हुए इनडायरेक्ट खर्चे, उसके लिए बना दिया चैप्टर ओवरहेड। ओके, तो यानी ओवरहेड चैप्टर मुश्किल खर्चों के लिए बनाया गया है। कोई बात नहीं, आते हैं जी। हम किसी से डरते हैं क्या कभी? हम तो कभी किसी से नहीं डरते। तो एक चैप्टर इन्होंने बना दिया ओवरहेड। हमें पढ़नी है अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड पढ़नी है, और आईपीसीसी ने सजेस्ट किया है प्री डिटरमाइंड रेट मेथड, प्री डिटरमाइंड रेट्स मेथड। ओके, इसके स्टेप: फर्स्ट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट या रिकवरी रेट, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट या प्री डिटरमाइंड रेट। फोर्थ, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। फिफ्थ, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इफ एनी। ठीक है, ये 5 स्टेप हमारे पास हैं। इन 5 स्टेप्स को हमें करना है 1 बाय 1। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। हम इसे तोड़ कर करेंगे। पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी, फिर रिकवरी रेट निकालना, फिर अंडर ओवर रिकवरी क्या है, कितने एब्जॉर्ब हुए, सारे के सारे 5 स्टेप जब पूरे हो जाएंगे पूरा चैप्टर कंपाइल हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें,
हर चीज़ के लिए मैंने एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन डिजाइन किया, बस एक एग्जाम्पल और एक उसमें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 50 क्वेश्चन करेंगे तो आप सोचें आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है, उसे ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को समझनी पड़ेगी कॉस्ट। कॉस्ट को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कॉस्ट होती हैं स्पेसिफिक और इंडिविजुअल, ठीक है, और एक कॉस्ट होती हैं कॉमन, ठीक है। इंडिविजुअल और स्पेसिफिक और दूसरी कॉमन। इंडिविजुअल और स्पेसिफिक का मतलब, व्हेन स्पेसिफिक, बहुत सिंपल है, व्हेन स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर is related to a specific department, then such expenditure is known as स्पेसिफिक और इंडिविजुअल कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मेरे पास 4 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, 4 डिपार्टमेंट हैं। चारों डिपार्टमेंट के बाहर इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, यानी सबका सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। ओके, अब जरा डेफिनेशन पढ़िए। स्पेसिफिक और इंडिविजुअल कॉस्ट की डेफिनेशन है, व्हेन स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। क्या मैं कह सकता हूं डिपार्टमेंट 4 का इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बिल स्पेसिफिक खर्चा है? ये किससे रिलेटेड है? डिपार्टमेंट D4 से। इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक खर्चा, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए किया गया। तो डिपार्टमेंट 4 का इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपार्टमेंट नंबर 4 का ही खर्चा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। कुछ करना क्या होगा, बहुत सिंपल होता है इसमें, असाइन और अलॉट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डिपार्टमेंट 4 टू द एक्सपेंसेज ऑफ डिपार्टमेंट 4। बताइए, डिपार्टमेंट 4 के इलेक्ट्रिसिटी बिल से डिपार्टमेंट नंबर 4 का ही खर्चा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अभी समझ में आएगा, ये दूसरे वाली कॉस्ट के बाद। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डिपार्टमेंट 4 will increase the cost of department 4। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है डिपार्टमेंट नंबर 4 का, वो डिपार्टमेंट नंबर 4 की कॉस्ट ही बढ़ाएगा। दिस असाइनमेंट, आपने जो डिपार्टमेंट नंबर 4 का बिल था वो डिपार्टमेंट नंबर 4 के खर्चों में ऐड कर दिया,
ये बहुत सिंपल चीज़ है, कॉमन सी बात है। डिपार्टमेंट नंबर 4 का एक बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का कंपनी के पास, कंपनी ने डिपार्टमेंट नंबर 4 के खर्चों में जोड़ दिया। इन बिल को, स्पेसिफिक बिल को, डिपार्टमेंट नंबर 4 के खर्चे को डिपार्टमेंट नंबर 4 के ऊपर डाल देना, असाइन कर देना। डिपार्टमेंट नंबर 4 का बिल आया, उस बिल को डिपार्टमेंट नंबर 4 के खर्चों में डाल देना अलॉटमेंट कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में हमेशा। दिस असाइनमेंट और अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट is known as cost allocation। बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको इसके बगल वाले से, कॉमन कॉस्ट से। कॉमन कॉस्ट का मतलब है व्हेन स्पेसिफिक एक्सपेंस इज रिलेटेड टू more than one डिपार्टमेंट। अगर एक खर्चा एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, देन such expenditure is known as कॉमन एक्सपेंस। यानी कॉमन एक्सपेंस जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च होता है, या कॉमन कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, 4 डिपार्टमेंट हैं, D1, D2, D3, D4। चारों डिपार्टमेंट का एक ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। मान लेते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग का एक ही मीटर है। सिंगल इलेक्ट्रिक मीटर फॉर एंटायर बिल्डिंग। ठीक है, अगर पूरी बिल्डिंग का एक ही मीटर है तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसा हो गया? कॉमन हो गया। इसमें क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रिसिटी बिल मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और चार्ज among various departments। चारों डिपार्टमेंट पे बांट दो। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल प्रपोर्शन। लॉजिकल प्रपोर्शन आपको निकालना होगा कि किस तरह से बांटें। सिंपल है, जिसमें ज़्यादा एसी लगे हों उस पर ज़्यादा बांट दो, या जिसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें हों, ज़्यादा लाइट कंज्यूम करने वाली, उस पर ज़्यादा बांटो। ठीक है, तो 2 तरीके के खर्चे हैं, एक है इंडिविजुअल या स्पेसिफिक खर्चा, एक है कॉमन खर्चा। स्पेसिफिक खर्चा यानी हर डिपार्टमेंट का अलग, कॉमन खर्चा यानी एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए एक ही जगह पे किया गया खर्चा। अगर स्पेसिफिक खर्चा है तो जिस डिपार्टमेंट का है उसी पे डाल दीजिए। अगर 4 डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल आया तो डिपार्टमेंट नंबर 1 का बिल 1 पे भेजो, 2 का बिल 2 पे भेजो, 3 का बिल 3 पे भेजो, 4 का बिल 4 पे भेजो। तो स्पेसिफिक खर्चे को उस डिपार्टमेंट से लिंक करना, उसके खर्चों में जोड़ना, इसे कहते हैं एलोकेशन। और दूसरा कॉमन खर्चा, कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस को आप बांट देंगे सारे डिपार्टमेंट्स में
this distribution of common cost is known as cost apportionment। इसे apportionment बोला जाता है। तो अगर आपसे इन फ्यूचर अब कोई पूछे कि ओवरहेड चैप्टर में अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट पर खर्चा हुआ, उस खर्चे को बांटना अपॉर्शनमेंट, और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट पर अलग अलग खर्चा हुआ उसे बांटना एलोकेशन। ठीक है, अब जरा देखिए, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट बहुत ही सिंपल है। जिस डिपार्टमेंट का बिल है उस डिपार्टमेंट पे भेजो, एलोकेशन। कई सारे डिपार्टमेंट का एक साथ बिल आया है, एग्रीगेट आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, कोई एक ढंग का तरीका लो और बांट दो सब पर। तो बांटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इस पर अभी और बात करेंगे हम आगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे, ये एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट हमारे पास हो गया। सब चीज़ों पर वापस आएंगे धीरे धीरे। हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड है, उसके अंदर है सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बस और 10 मिनट जा रहे हैं और हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चले जाएंगे। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स उठाए हैं जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या स्टडी मटेरियल के हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ये हमारी स्टार्टिंग है आज ओवरहेड चैप्टर की। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ओवरहेड चैप्टर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक मुझे थोड़ा सा बेस देना था, वो मैंने दिया। मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस, 3 एलिमेंट। डायरेक्ट पार्ट प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट पार्ट ओवरहेड जिसकी यहाँ पर बात होगी। 2 डिपार्टमेंट, मेन और सपोर्ट। सपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सारा खर्चा हमारे लिए ओवरहेड। मेन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट खर्चा ओवरहेड। कॉस्ट 2 तरीके की, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग, या 3-4 डिपार्टमेंट की एक साथ। अलग अलग कॉस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट पे डाल दो, एलोकेशन। एक साथ आया है सबका खर्चा, सब पर किसी तरीके से बांटो, कोई ना कोई तरीका तो बांटना पड़ेगा, बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप 3 दोस्त हैं, आप 3 दोस्त एक फ्लैट में रहते हैं, उस फ्लैट का किराया है 9000। बताइए ये कॉमन खर्चा है या स्पेसिफिक? कॉमन खर्चा है। 3 दोस्तों का इकट्ठा बिल आ रहा है 9000। कैसे बांटते हो? इक्वल रेशो में बांट लेते हो, 3000 3000 3000, खर्चा बटा काम खत्म। ये अपॉर्शनमेंट है। कई बच्चे पीजी पे रहते हैं, पीजी मिलता है, एक बच्चे पर 5000 का खर्चा। बताइए पीजी का जो खर्चा है वो स्पेसिफिक कॉस्ट है या कॉमन? स्पेसिफिक कॉस्ट है। हर बच्चे का 5000, तो एक बच्चा रहेगा तो 5000 देना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं देना पड़ेगा, कोई बांटने वाली बात नहीं है। वहाँ एलोकेशन है जहाँ हर बच्चे का बिल आ रहा है 5000, एक बच्चा 5000 खर्चा, बच्चे से रिलेटेड है, एलोकेशन करो, उसके ऊपर डालो। एक फ्लैट में 3 बच्चे रह रहे हैं, 9000 किराया, 3-3000 सबका। एक बच्चा भाग गया, सोच के देखिएगा, एक फ्लैट 3 बच्चे, 9000 किराया, अपोर्शन करिए 3000 ईच। एक बच्चा भाग गया, 2 बच्चे रह गए। बताइए 2 बच्चे रह गए, 9000 किराया, 4500 रुपये हर बच्चे पे। यानी खर्चा रिलेटेड नहीं है किसी से भी, बांटा जा रहा है बस। पीजी पे रह रहे हो, एक फ्लैट के 2 हिस्से कर रखे हैं, एक बेड ये, एक बेड ये। पीजी पे अगर रहते हो तो एक बेड आपको मिलता है 5000 में। आप आइए 5000 में रहिए, चाहे दूसरा बेड खाली हो या भरा हुआ हो। अगर दूसरे बेड पे भी एक और बच्चा आ जाता है, एक और स्टूडेंट आ जाता है, तो 5000 वो देगा। तो सब अपना अपना दीजिए। एलोकेशन, इकट्ठा बिल आ रहा है, पूरे फ्लैट का बिल आ रहा है, अपॉर्शनमेंट। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, आ जाएगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से ओवरहेड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से बहुत ध्यान से करिएगा। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के बाद, तो बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, स्टेप 1, एस्टिमेशन
सबसे पहले आइडिया लगाइए कितने खर्चे होंगे। एस्टिमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चिंता मत करिए, गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मुझे अगले बैच की फ़ीस निकालनी है, मान लो एक क्लासेज नमित अरोड़ा क्लासेज फरवरी में बैच आने वाला है, मुझे उसकी फ़ीस निकालनी है। तो फ़ीस कैसे निकालूंगा, अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि फरवरी में मेरा कितना रेंट जाएगा, कितना रिसेप्शन का खर्चा होगा, कितना बुक का खर्चा होगा, सारा खर्चा सोचूंगा। तो पहले आज हिसाब किताब बजट बनाऊंगा, तभी तो मैं बच्चे को बता पाऊंगा मेरी फ़ीस कितनी है आज। तो पहले आप बजट बनाइए, एस्टिमेशन करिए, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, स्टेप 2, कॉस्ट एलोकेशन। स्टेप 3, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ठीक है, ये 3 स्टेप है हमारे। जैसे ही ये 3 स्टेप आएंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, 20 मिनट के अंदर तीनों स्टेप खत्म हो जाएंगे। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा पार्ट देखिए, कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन अभी पढ़ा था हमने, असाइनमेंट और अलॉटमेंट और चार्जिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ स्पेसिफिक यानी इंडिविजुअल खर्चा जो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, स्पेसिफिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसी भी कॉस्ट हो टू सपोर्ट डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट का कैसा भी खर्चा हो, दोनों आएंगे। एंड स्पेसिफिक इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली। कौन से डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो स्पेसिफिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट सपोर्ट डिपार्टमेंट की और स्पेसिफिक इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की यहां पर आ जाएगी। ओके, डायरेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will become the part of प्राइम कॉस्ट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये होता है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है जो आपका सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके सारे खर्चे ले लीजिए। एलोकेशन का मतलब जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके सारे खर्चे ले लीजिए, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके इनडायरेक्ट खर्चे लीजिए, बस। और एलोकेशन में सिर्फ कौन से खर्चे आएंगे, जिनके अलग अलग बिल होंगे, सबके अलग अलग बिल, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, और जिनका अलग अलग बिल नहीं होगा उसके लिए आपके पास है कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, अब इस पर आते हैं, इसका क्या मतलब है देखते हैं इसे। डिस्ट्रीब्यूशन और चार्जिंग ऑफ कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट बांटी जाएगी सिर्फ अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। आर नोन एज कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। तो अगर आप कॉमन खर्चे को, कॉमन कॉस्ट को बांटते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर, उसे अपॉर्शनमेंट बोला जाता है।
और ध्यान रखिए कॉमन कॉस्ट जनरली इनडायरेक्ट ही होती है। जनरली क्या, हमेशा ही इनडायरेक्ट ही होती है। मुझे बताइए जो खर्चा कॉमन है यानी एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है वो किसी से डायरेक्टली कैसे लिंक हो सकता है? डायरेक्टली लिंक सिर्फ वो खर्चा हो सकता है जो स्पेसिफिक उसी चीज़ के लिए हो। अगर कोई खर्चा, जैसे इसके लिए स्क्रीन इसी के लिए खरीदी गई है इसलिए इसका डायरेक्ट खर्चा है, बाहर के बटन्स इसी के लिए खरीदे गए हैं इसलिए इसका डायरेक्ट खर्चा है। अगर एक डीजल लिया गया है, जो डीजल यूज करके जनरेटर चलेगा और वो जनरेटर सबको लाइट दे रहा है, हर डिपार्टमेंट को लाइट दे रहा है वो जनरेटर, तो डीजल का खर्चा कॉमन खर्चा है। डीजल जनरेटर में डला, सारे डिपार्टमेंट में लाइट आई, तो डीजल का खर्चा जो कॉमन खर्चा है वो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकता। वो खर्चा तो सबके लिए है, अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा कॉमन खर्चा हमेशा ही इनडायरेक्ट होता है, वो कभी भी डायरेक्ट नहीं हो सकता। अब इसे बांटेंगे कैसे? बांटने के लिए कोई ना कोई लॉजिकल बेस होना चाहिए, तो मैं ऐसे ही आपको एक आइडिया के लिखवा देता हूँ। कॉमन एक्सपेंस या कॉमन कॉस्ट, और यहाँ पर लिख लेते हैं लॉजिकल बेस कि आखिर क्या लॉजिक हो सकते हैं। लॉजिकल बेस के नीचे एक जगह छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि रेंट ऑफ बिल्डिंग या रेंट एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, इनको किस तरह से बांटा जाए? तो जी बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, एरिया के बेसिस पर बांटिए। जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया घेरा है उस एरिया के बेसिस पर सारे खर्चे बंटने चाहिए। डेप्रीशिएशन और क्यों एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीन, मशीन से रिलेटेड खर्चे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट पर बुक वैल्यू ऑफ मशीन, जिस डिपार्टमेंट में महंगी मशीन है उस पर ज़्यादा डेप्रीशिएशन, जिस डिपार्टमेंट में सस्ती है वहाँ पर कम डेप्रीशिएशन। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री में ज़्यादा एरिया घेरा है उस पर ज़्यादा लाइट खर्च हो रही होगी, या फिर जिस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लाइट पॉइंट यानी कितने होल्डर, कितने पंखों के पॉइंट, कितने एसी लगे हुए हैं, उसे बोलते हैं लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट का मतलब बताता हूँ आपको। जैसे एक डिपार्टमेंट में 5 एसी लगे हुए हैं, एक में 2 एसी, तो उसे बोला जाएगा 5 एसी को 5 लाइट पॉइंट हैं, और 2 एसी को बोला जाएगा 2 लाइट पॉइंट हैं। तो एक डिपार्टमेंट में 5, एक डिपार्टमेंट में 2 एसी, तो लाइट कैसे बांटो? 5:2 में, इस प्रपोर्शन में बांट दिया जाएगा लाइट का खर्चा। ओके। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मशीन्स, कुछ लाइट मशीन यूज करती हैं, तो ये वाली ऊपर वाली इलेक्ट्रिसिटी कैसी थी? एसी, फैंस एटसेट्रा, ट्यूबलाइट, ये सब चीज़ चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मशीन्स ये होती है पावर की लाइट, बड़ी हैवी लाइट होती है, लिखा हुआ भी होता है, भूत बना हुआ होता है, लिखा हुआ होता है डेंजर 440 वोल्ट, वो वाली लाइट पकड़ लिया तो आपका काम खत्म। हॉर्स पावर ऑफ मशीन, मशीन्स होती हैं हॉर्स पावर में, या फिर किलोवाट ऑफ मशीन्स, इस तरह से आप ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं यूनिट्स यूज्ड, किस मशीन ने कितनी यूनिट्स यूटिलाइज की हैं एटसेट्रा। इस तरीके से ये लॉजिकल बेस हो सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक जगह छुड़वाई है। लॉजिकल बेस होते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन इन क्वेश्चन, तो लॉजिकल बेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, बाकी आप लोग बड़े आराम से आइडिया लगा सकते हैं। कोई भी खर्चा ले लीजिए, बताइए कैंटीन का खर्चा कैसे बांटूं अलग अलग डिपार्टमेंट में? कैंटीन में खाना खाया जाता है, तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लेबर है, एक डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉय हैं, एक में 50 एम्प्लॉय हैं, कैंटीन का बिल है 15,000। सोच के देखिए, कैंटीन का बिल है 15,000, 2 डिपार्टमेंट हैं P1 P2, यहाँ पर 100 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर 50 एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के रेशो में बांटो। एम्प्लॉय तो खाना खाते हैं। अच्छा मशीन है, मान लो यहाँ 2 मशीन्स हैं, यहाँ 5 मशीन्स हैं,
क्या कैंटीन का खर्चा मशीन्स में बांटा जाएगा? ना, कैंटीन का खर्चा बटेगा एम्प्लॉयज में। 100:50 बांट दीजिए। 10,000 का खर्चा इस डिपार्टमेंट का, 5,000 का खर्चा इस डिपार्टमेंट का। तो लॉजिकल बेस क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जी, लॉजिकल बेस भी गिवन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आपके पास न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा, जनरली एग्जामिनर आपसे कहता है कि बनाइए स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आखिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या फिर इसे वो बोलता है ओवरहेड एनालिसिस शीट। ओवरहेड एनालिसिस शीट, ठीक है। किस तरह से बनाई जाती है? मैं मान लेता हूं मेरे पास पर्टिकुलर्स, आराम से समझिएगा किस तरह से बनाई जाएगी। यहां पर बेस लिया जाता है, लॉजिकल बेस। यहां लिए जाते हैं मेन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहां लिए जाते हैं सपोर्ट डिपार्टमेंट। अलग अलग दोनों को दिखाया जाता है, ठीक है। मेन डिपार्टमेंट मान लेता हूं P1 P2, सपोर्ट डिपार्टमेंट मान लेता हूं S1 S2, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई खर्चे की बात करते हैं, कोई खर्चा हमारे सामने आता है। सबसे पहले जैसे स्पेसिफिक खर्चे आते हैं, स्पेसिफिक कॉस्ट आती हैं। स्पेसिफिक यानी इंडिविजुअल कॉस्ट, जिनका एलोकेशन होता है। लाइक डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और कोई स्पेसिफिक कॉस्ट है, अदर स्पेसिफिक कॉस्ट, कुछ भी हो सकती है। अलग अलग बिल होने चाहिए बस हर डिपार्टमेंट के, वो आ जाएं, ठीक है। ये सब आ जाएंगे। फिर कॉमन खर्चे आ सकते हैं। कॉमन कॉस्ट लाइक मैं मान लेता हूँ रेंट कॉमन है, और इंश्योरेंस ऑफ मशीन, मशीन का इंश्योरेंस है, एटसेट्रा। ऐसे खर्चे हो सकते हैं। ये मैं ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ अपने मन से कुछ भी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मेरी फैक्ट्री में बस इतना ही टोटल खर्चा हुआ सब जगह पे। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या टोटल ओवरहेड। आराम से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो स्पेसिफिक खर्चे हैं जिनके बिल अलग अलग हैं, वो सब एलोकेशन होता है। उन सब का एलोकेशन होता है, एलोकेशन चल रहा है, ठीक है। ये एलोकेशन आ गया। कॉमन कॉस्ट, जैसे इसे मान लेता हूँ कि रेंट को एरिया के बेसिस पर, इंश्योरेंस को बुक वैल्यू ऑफ मशीन के रेशो में। इस तरह से हम यहाँ पर बेस लिखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो स्पेसिफिक खर्चों का एलोकेशन, कॉमन खर्चों का अपॉर्शनमेंट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नहीं आ सकते। डायरेक्ट खर्चे नहीं आ सकते। और कोई खर्चा आ सकता है? यस, और कोई खर्चा आ सकता है। ये जो डायरेक्ट खर्चा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्राइम कॉस्ट में, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, कॉमन खर्चे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बाकी सब आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अच्छा, जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके लिए क्या कहना है? सपोर्ट डिपार्टमेंट के तो सारे खर्चे जितने भी हैं, सारे के सारे ओवरहेड हैं। बात समझ रहे हैं? सपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे खर्चे और मेन डिपार्टमेंट के बाकी खर्चे ओवरहेड हैं। यहाँ पर नीचे टोटल कर दिया जाता है। आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, और
टोटल एक्सपेंस सपोर्ट डिपार्टमेंट के, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा भी था, हमने स्टार्टिंग में लिखा था डायरेक्ट खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्राइम कॉस्ट, वो ओवरहेड चैप्टर में नहीं आएगा। इनडायरेक्ट खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट डिपार्टमेंट का आएगा। तो ये हमारी ओवरहेड एनालिसिस शीट हो जाती है कि भैया जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे हैं वो मत लो, बाकी सारी चीज़ें ले लो। बताइए बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? ये जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं इन सबको बोला जाता है ओवरहेड। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर इन सब के टोटल आ जाएंगे। ये हमारी ओवरहेड एनालिसिस शीट होती है। ओके, कोई न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल कोई ले लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आ पाए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन BQ1। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। A company's production for the year ending 30th June 2014 is given below. Production department P1, P2, P3, ठीक है, एंड सर्विस डिपार्टमेंट ऑफिस स्टोर एंड वर्कशॉप, और लास्ट में टोटल है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेज नहीं आएंगी, ऑफिस की आ जाएंगी। ओके, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट का आ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल सबका आ जाएगा, इनका भी और इनका भी। इनडायरेक्ट वेजेज सबकी आ जाएंगी। ओके, ये सब आ जाएगा। एरिया, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन कैपेसिटी, ये तीनों खर्चे तो नहीं है, ये तीनों हैं लॉजिकल बेस, जो क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कहीं ना कहीं काम आएंगे। देखते हैं कहाँ काम आएंगे, आगे चलते हैं। मुझे बताइए इसमें ये जो चारों खर्चे दिए हुए हैं क्या हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बताया गया है? यस। अब कुछ क्वेश्चन खुद बताएगा जो सेपरेट बिल ना होकर कॉमन बिल होंगे। जनरल एक्सपेंस, रेंट 12,500, देखकर बताइए क्या क्वेश्चन ने हर डिपार्टमेंट का रेंट अलग अलग बताया? नहीं, ये सब बेसिकली अब कॉमन खर्चे हैं। ये मेरे पास आ जाएगी कॉमन कॉस्ट। अब ये कॉमन खर्चे चालू हो गए। ओके, देखते हैं। रेंट, बताइए रेंट को किस बेसिस पर बांटूं? बेसिस कहीं बाहर से नहीं लाना, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा, ढूंढिए। एरिया पर बांट दूं? यस, तो इसे मैं बांट सकता हूं एरिया के बेसिस पर। ओके, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, मशीन का इंश्योरेंस बुक वैल्यू ऑफ मशीन पे बांट दूं? ठीक है, ये आ जाएगा बुक वैल्यू ऑफ मशीन पर। डेप्रीशिएशन 15% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, खुद ही दिया हुआ है, तो जिस मशीन की जितनी वैल्यू है 15% लगा दूंगा। पावर, पावर बताइए किस चीज की होती है? हमेशा मशीनों की होती है, जिस पर लिखा होता है डेंजर। और जो फैक्ट्री होती है उसकी क्या होती है? लाइट। लाइट का मतलब एसी, कूलर, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब चल रहे हैं। पावर का मतलब बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। मशीन का खर्चा, लाइट का बताइए, मशीन की लाइट का खर्चा, मशीन की कैपेसिटी दी हुई है हॉर्स पावर, आपको मिलेगा सब क्वेश्चन में ही, तो हॉर्स पावर या किलोवाट इस तरह से कुछ दिया होगा, उस रेशो में बांट दीजिए। और बताइए HP ऑफ मशीन, हॉर्स पावर दी हुई है तो HP ऑफ मशीन। लाइट, लाइट किस रेशो में बांटूं? कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, तो उस रेशो में बांट दीजिए। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। और कोई तरीका देखिए क्या हो सकता है। दूसरा तरीका होता है एरिया। एरिया क्यों? जिस डिपार्टमेंट में जितना ज़्यादा एरिया होगा उस डिपार्टमेंट में उतना ज़्यादा लाइट जलेगी। एक डिपार्टमेंट छोटा सा है, 1-2 AC, 1-2 ट्यूबलाइट। एक डिपार्टमेंट बड़ा है तो 5-10 AC, 5-10 ट्यूबलाइट। तो एरिया के बेसिस पर आप लाइट के खर्चे को बांट सकते हैं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ओवरहेड एनालिसिस शीट for the department showing clearly the basis of apportionment when necessary। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों के पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसे देखते हैं पहले फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर फर्स्ट, आप इसमें लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लिख सकते हैं ओवरहेड एनालिसिस शीट।
कुछ भी नाम दे सकते हैं, दोनों अलाउड है। ठीक है, हमारे पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट हैं और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आ जाता है आपका बेसिस।